सिंसी जीता एंड यूएस ओपन जीता, but खैर मॉन्ट्रियल में I remember I drove for like 5 hours just to watch I that match. remember you telling me about that, and Yeah, then watching him, in Wimbledon a couple of years back. Like it's special, man. That court. Nadal is the only professional player I know who's never broken a racket. Mm. Never. And Rafa just shook his hand. He's like, very bad. It's very bad. ठीक है? Like being consistent throughout a tournament and being just excellent. It is Roland Garros 2008. That was domination. I think you can win 10 of these. Rafa's like, maybe more. तो कहते हैं ना कोल्ड, ये जेनजी वाले कहते हैं Yeah, कोल्ड ऑरा, ऐ होता है ऑरा. yeah. सो या लास्टली उसके बाद जी राफा का जो इम्पैक्ट था, फिर मैं उससे मिलता रहा उसको. आसन ने भी जाके उसको विंबलडन पे देखा हुआ है. सो आई एम गोना आस्क आसन व्हाट हिज बेस्ट मेमोरी फ्रॉम वाचिंग राफा लाइव वाज, और फिर उसके बाद मैं आपको अपनी बताता हूँ. आसन क्या थी यार तेरी लास्टिंग मेमोरी? तूने चिरंडोलो के Yeah, खिलाफ so मेरे ख्याल से मैच देखा था उसका. so the first time I actually watched him was in Queens. So in that time, I was in the neighborhood, and our apartment actually overlooked the courts of Queens लकी. Club. So then for local residents, they had a deal where you can show up one afternoon and get access. So I was so excited. I was finally getting to see like Rafa Nadal in person. या He I remember he played against Songa that match. He actually हाँ lost, या but just seeing him in person, and he's just I'd seen a few tennis matches before. London mein wo jo end of year bhi wo event फाइनल्स hota होते tha थे year हाँ. two. Yeah, exactly. But watching him was like so unique, man. His ball flight, his top spin, just as a tennis player, so unique, but then also just the kind of aura he had about himself. हाँ Like you can tell this guy is, he is something special. And यार. then watching him, in Wimbledon a couple of years back, like it's special, man. That court, center court in Wimbledon is special, but then having him on there, it's like, well, it kind of just, I think his whole kind of career, you start thinking about what this guy's been through and just his whole story, and it's just more than just a tennis match. It's more than just a tennis player. Like it's kind of surreal, and it's you feel like so small sitting there in center court in the presence of tennis like greatness. या So it was like great memories of watching him play. 100%. I wish I could have seen him on Roland Garros once. वो कभी यार yeah, आसन we वो wanted to एक go together as वो एक well, रह गई but I मेरी guess तेरी यार जिंदगी की. uh, एक मेरा तेरा वो रह गया एक लाइफ yeah, एक्सपीरियंस yeah. मैन. इट वुड हैव बीन अमेजिंग. Mm, यार मुझे याद है पहली बार व्हेन आई सॉ हिम, मैं तो वो जो टोरंटो वाला जो टूर्नामेंट था वो मेरी यूनी में होता yeah, था, तो मेरे अपार्टमेंट के mm, बिल्कुल, तुझे याद ही है तू आया हुआ उधर, तो मेरे को बाहर yeah, था. तो मैं आया हुआ था समर वेकेशन पे एंड आई टोल्ड माय डैड कि आई हैव टू गो बैक अर्ली बिकॉज मैंने इसको देखना mm, है. तो मैं चला गया वापस जल्दी, महीना पहले चला गया था. उसी टाइम पे मैं उसको एयरपोर्ट पे मिला एंड देन mm, आज ही मैं देख रहा था, मेमोरी शेयर हुई हुई थी फेसबुक पे, वेयर आई रिकॉर्डेड हिज हिटिंग सेशन. ही वाज हिटिंग विद नोवाक जोकोविच. yeah, दैट वाज एक्चुअली वो एक टूर्नामेंट है जिसे नोवाक जोकोविच और नडाल डबल्स इकट्ठे खेले थे. ठीक है ना. mm, और दे लॉस्ट द फर्स्ट राउंड में ही हार गए थे, बट डबल्स इकट्ठे खेले थे ये लोग. yeah, बट इसका सिंगल्स का डेब्यू था आई रिमेंबर. और उस टूर्नामेंट में थीम ये थी कि व्हाट दे डिड वाज आंसू के ना सारे बिग प्लेयर्स जो थे ना, इनके ऊपर दे हैड अ थीम सॉन्ग. ठीक है ना. mm, स्पेसिफिक टू ईच ऑफ दीज मार्की प्लेयर्स. सो रॉजर फेडरर का सुपरमैन की थीम थी. ठीक है ना. और राफा की मैं बैठा हूँ अब. ठीक है ना. और राफा का जब टाइम आया है, वावरिंका के खिलाफ उसका पहला मैच था, और गाना बजना शुरू हुआ है आई ऑफ द टाइगर. ठीक है ना. आई डोंट थिंक mm, any other yeah. song, yeah, So represents any other athlete the way that song represents Rafa. yeah, और राफा आया है और पहला सेट वाज टाइट, बट उसके बाद राफा क्रूज सेमीफाइनल हारा था टू एंडी मरे. बट आई सॉ ऑल ऑफ हिज मैचेस. mm, केविन एंडरसन के खिलाफ देखा, कोच श्राइबर के खिलाफ देखा. mm, बट देन द बेस्ट मैच दैट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ लाइव, और वो आई वाज फॉर्चुनेट कि वो मैच वाज नॉमिनेटेड एज, it was selected as the match of the year ATP का. It was 2013 Montreal Rafa versus mm, Djokovic semi-final. And I remember that match. राफा का वो कमबैक ईयर था, और राफा ने ग्रास क्ले पे तो उड़ा दिया था हर एक कोई.
और वो सेमीफाइनल जो था फ्रेंच ओपन पे अगेंस्ट जोकोविच, और उसके बाद ही केम टू द हार्ड कोर्ट स्विंग, मॉन्ट्रियल जीता, सिंसी जीता एंड यूएस ओपन जीता। बट खैर मॉन्ट्रियल में आई रिमेंबर आई ड्रोव फॉर लाइक 5 hours जस्ट टू वॉच I दैट मैच। remember you telling me about that journey to Montreal, the money you ended up spending to watch Nadal, as you Unbelievable. know. Unbelievable. And I remember where I was sat, I उधर everyone like मेरे लेफ्ट पे सर्बियन फैंस थे, राइट पे सर्बियन फैंस थे, और यार लेफ्ट इधर राइट इधर, मेरा भी आजकल दिमाग घुमा हुआ है बहरहाल। तो सर्बियन फैंस थे, और वो दैट्स द मैच जिसमें वो नडाल ने ड्रॉप शॉट पे उसको मारी थी तो इधर लग गई थी, और वो दैट मैच हैड एवरीथिंग। बट वो जो मैच में जो बॉल स्ट्राइकिंग की क्वालिटी थी ना, लाइक आई नो सेंटिमेंटली एवरीवन सेज कि नडाल फेडरर इज द ग्रेटेस्ट राइवलरी, बट इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ टेनिस नडाल जोकोविच कैन नॉट बी मैच्ड। ठीक है यार, फुल बिल्कुल हाफ वॉलीज पे विनर्स मारते थे एक दूसरे को ये लोग, ठीक है ना, और बिल्कुल पेंटिंग द लाइंस, और फुल मार रहे हैं यार, जस्ट द बॉल स्ट्राइकिंग, like relentless, It was absolutely truly relentless. the golden era of tennis, like having 100% यार, Federer, Nadal, Djokovic in one era. Like, I mean, some of the matches they played, like all three, like once, one in a lifetime players. Yeah, 100%. in today's game, Sinner and Alcaraz are great, but they have some way to go to live up to those three. आंसू, लेकिन वो देखना यार, वो एरा में जो टॉप 10 बाकी था ना, वो अगर इस एरा में है ना, वो सारे ग्रैंड स्लैम जीत जाएं। Hmm. ठीक है ना, डेविड फेरे, टॉमस बर्डिच, लाइक दे वर ऑल गन प्लेयर्स मैन। Hmm. ठीक है ना, सोंगा, सोंगा कितना गन प्लेयर था। ठीक Yeah. है, ऑब्वियसली आई एम मिसिंग अ फ्यू, बट so many great players, man. Even Del if Potro, Andy Murray was in this generation, he probably could have even got near like double digit Grand double Slams. digits, hands Hmm. down double digits यार। वो डेल पोट्रो यार, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट Yeah. फोरहैंड्स ऑफ ऑल टाइम। उस बंदे को Yeah. इन्होंने एक ग्रैंड से, ठीक है उसकी इंजरीज भी थी, बट एक ग्रैंड स्लैम ही वो जीता। और Hmm. बिकॉज द प्रॉब्लम वाज ना, द प्रॉब्लम दे फेस वाज के अगर आप नडाल या अगर आप जोकोविच को हरा दोगे तो नडाल या फेडरर पकड़ लेंगे आपको, और Yeah. किसी Yeah. की गेम वाज नॉट वेल इक्विप्ड टू हैंडल ऑल थ्री इन द सेम टूर्नामेंट। Hmm. बनी नहीं है ऐसी गेम टू Yeah. हैंडल ऑल Yeah. थ्री, बिकॉज टेनिस इज ऑल अबाउट मैचअप्स। ठीक है ना, Hmm. सो किसी की गेम ऐसी बनी नहीं थी टू हैंडल ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर। आई थिंक देयर इज ओनली वन गाय हुज डिफीटेड ऑल थ्री इन वन टूर्नामेंट, एंड दैट्स डेविड नलबैंडियन। ठीक है ना, एंड Yeah. ही इज द मोस्ट टैलेंटेड गाय हुज नेवर वन अ ग्रैंड स्लैम इन माय आईज। उसका बैकहैंड वाज इनक्रेडिबल। ठीक है, उसने Yeah. 2003 का यूएस ओपन जीता ना था, चोक कर गया था रॉड्रिक के खिलाफ थर्ड सेट के अंदर, टाई ब्रेक में मैच पॉइंट अप था, वहां से चोक किया था और फिर लॉस्ट द नेक्स्ट टू That's the thing सेट्स। about tennis, man. You can have all of the game, but if you don't have it, up there, then 100%, and no 100%. no discredit to him. But I remember the last highlight of Nalbandian I watched was in Queens or a tournament in the UK where he kicked the linesman and got Bechara Yeah. linesman was hopping around holding his chin. या अब आसिर यार, तूने मुझे बहुत अच्छा पॉइंटर दे दिया। अब किक से मुझे याद आया, नडाल इज द ओनली प्रोफेशनल प्लेयर आई नो हुज नेवर ब्रोकन अ रैकेट, Hmm. नेवर। ठीक है, हर एक ने रैकेट तोड़े, इसने नहीं तोड़े क्योंकि चाचा ने इसके बचपन में कहा था कि अगर तूने रैकेट तोड़ा, ये डिसरिस्पेक्ट है टू दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड अ टेनिस रैकेट, सो द डे यू ब्रेक अ रैकेट आई विल स्टॉप कोचिंग यू। ठीक है, एंड अ गाय हु इज सो इंटेंस, हु इज सो इमोशनल, और हर चीज है, फॉर हिम टू हैव द रिस्ट्रेन ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, के रैकेट इस तरह एक बार ऐसे करना है, बहुत हो गया तो मुक्का मार देगा स्ट्रिंग्स के ऊपर। ठीक है ना यार, इनक्रेडिबल ह्यूमन बीइंग, ऑनेस्टली इनक्रेडिबल ह्यूमन बीइंग। लाइफ लेसन जो है ना इसके, इमोशनल कंट्रोल, हर चीज के ऊपर, इट्स जस्ट नोट टू सेल्फ दीज डेज। बट खैर इनक्रेडिबल यार। ठीक है ना, मैं आना चाहता हूँ, मुझे बर्डिच के नाम से याद है एक और चीज है, ऐसे आदमी को ना, हाँ ये भी नोट टू सेल्फ नहीं है, ये नोट टू अदर्स है। ऐसे पपले आदमी को ना एक चीज होती है, ऐसे पपले आदमी को जो बहुत ही पपलू है, जो बहुत हम्बल है, हु इज रेजिंग बुल ऑन द कोर्ट एंड हु इज लाइक क्लार्क कैंट। ठीक है ना, वो सुपरमैन वाला कॉन्सेप्ट था इसका, कि क्लार्क कैंट ऑन द आउटसाइड, सुपरमैन ऑन द कोर्ट। उसको गुस्सा ना चढ़ाओ, गुस्सा चढ़ाओगे ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई रिमेंबर 3-4 इंसिडेंट्स हैं। एक तो था रॉबिन सोडरलिंग के खिलाफ 2010 विंबलडन में, वेयर द अंपायर मेड अ हाउलर। ठीक है ना, ही प्लेड द बॉल बैक इन, कॉल लेट थी, वो सर्व इन हुई तो उन्होंने पॉइंट सोडरलिंग को दे दिया, एंड इज लाइक, और ये 1 सेट डाउन था, ही वाज 6-1 डाउन, ब्रेक पॉइंट डाउन। ठीक है ना, एंड ही जस्ट सॉ रेड,
ठीक है ना, दैट पॉइंट इसका फोरहैंड 0 इनहिबिशंस, ठीक है, कॉर्नर टू कॉर्नर इसने भगाया, और उस पॉइंट के बाद दैट मैच टर्न। विंबलडन 2010 का टाइटल जो है ना, क्या नाम था उसका यार, ही वाज पास्कल मरिया। पास्कल मरिया, थैंक यू यार, तुझे सैल्यूट मारता हूं मैं लड़के, तूने विंबलडन टाइटल जिता दिया हमारे लड़के को, ठीक है। बिकॉज क्वार्टर फाइनल में नडाल ने ना, वो ही सॉ रेड आफ्टर दैट, वो आप देख लेना जाके, जो भी देख रहा है वो पॉइंट जाके देखना, ही सॉ रेड, ठीक है, सेकंड सेट में उसने कहा बेटा बस गुस्सा चढ़ा दिया है, अब खत्म हो सारे, ठीक है। तो ये याद But it's रखना। also a lesson on, I guess how people channel their emotions and their anger, That's true। you know. मैं तेरे से बहुत Others, तंग हूँ आजकल, तेरे से बहुत तंग हूँ, ठीक है ना। You're genuinely annoying these days. I don't know why. अच्छा, तो मुझे गुस्से से याद आया, बर्डिच ने गलती ये कर दी 2006 के मैड्रिड मैच में अगेंस्ट राफा, बिकॉज ऑब्वियसली द क्राउड वाज फॉर राफा। तो उसने राफा को मैच हरा के वो इंडोर कोर्ट पे तो कर दिया पूरे क्राउड को, ठीक है। एंड राफा जस्ट शुक हिज हैंड, इज लाइक वेरी बैड, इट्स वेरी बैड, ठीक है। And that was that for Berdych. The next 18 matches that they played, Rafa beat Yeah. Berdych in the next 18 matches that he played. I think 2006 के बाद 2015 में जाके वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैच जीता था। बीच में 9 साल उसकी इसने जिंदगी बर्बाद कर दी थी, ठीक है ना। एनी टाइम ही सॉ, और राफा इज नॉट वन क्या वो मैं रिवेंज नहीं ले रहा, सारे पूछते थे रिवेंज है, वो अंदर चैनलाइज कर लिया था उसने, Yeah. बस अब वो अंदर लग गया है तो लग गया एंटी उसका, अब वो जा नहीं सकता दूसरी तरफ। एंड ही कंप्लीटली वॉच्ड हिम एवरी टाइम ही सॉ हिम, हर बार मारता था, ठीक है ना। बड़ी और बर्डिच हैड अ ह्यूज गेम मैन, उसने फेडरर को हराया हुआ ग्रैंड स्लैम्स में। Yeah. विंबलडन 2010 में फेडरर को उसने हराया, फाइनल नडाल के साथ खेला, ही हैड अ ह्यूज गेम, लाइक Yeah. बहुत Big आला, serve, बिग very good फोरहैंड यार, forehand. बैकहैंड सॉलिड था उसका, वॉली भी अच्छी कर लेता था। ही हैड अ ह्यूज गेम, विंबलडन फाइनल खेला हुआ यार, व्हाट एल्स डू यू नीड। Yeah. सो यार द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस ट्रिब्यूट, और मैं इसको लास्ट पे ही रखना चाह रहा था, आसन और मेरी बहुत सी मेमोरीज हैं दैट आर ऑब्वियसली बिकॉज ये मेरे बचपन का बहुत ही क्लोज दोस्त है, बहुत ही प्यारा दोस्त है। ही इज पार्टली वाई मैं हूँ जो हूँ एज अ पर्सन, एंड मे बी ही इज द पर्सन दैट ही इज बिकॉज ऑफ मी पार्टली। बट मैंने और आसन ने, ही वॉज माई फर्स्ट टेनिस पार्टनर, इसलिए आजकल भी लंदन से जब आता है तो वी हिट द टेनिस कोर्ट जस्ट लाइक गुड ओल्ड डेज। बट टेनिस मैंने 2021 में, क्रिकेट वॉज माई स्पोर्ट, मैं टेनिस के साथ obsessed था बिकॉज ऑफ नडाल, बट I did not play tennis properly. आसन के साथ खेले नहीं समर वेकेशन में, because आसन and I have never been in the same city for a very long period of time. Summer vacations में आता था तो we would get together. So 2021 में जब नडाल की वो debilitating foot injury हुई, and at that too something I was going through in my personal life, मैंने कहा यार अब टेनिस खेलनी है, बिकॉज ये क्रिकेट जो है ना ऑन द वीकेंड इज नॉट डूइंग मच फॉर मी, सो मुझे टेनिस की अपनी गेम बनानी है। सो दैट्स बिन अ जर्नी, वो आप लोग इंस्टाग्राम पे देख सकते हो कि मेरी टेनिस गेम अब जितनी भी है, बट सो वो जर्नी जो है ना वहां से शुरू हुआ। तो me playing tennis is also because of this guy. You know, Rafa is the reason behind. I go to court every day, go out there, garmi ho, sardi ho. Asan thinks I'm crazy for playing at 3 p.m. June ki garmi mein. But Yeah, I tried with you for one day. I almost passed out in the first like 45 minutes. You do it yeah, every day, man. It's incredible. but Rafa is the reason why, because he has helped me get over blues and he's given me so much joy. मेरा lifelong dream होगी कि if part of this tribute can get to him, I will make shorts और जो भी है tag करेंगे उसको, if anything can get to him and if he can look at it. पहले इस ज़माने में इसके मैनेजर के साथ मेरी ईमेल पे अच्छी हेलो आई थी, but it's just like लोगों को लगेगा कि यार पता नहीं ये क्या है, you have to, like when you have inspirations like him, life coaches like him, कभी कभार ना जिंदगी में, अपने जिंदगी में बंदा अपनी खुशी काम भूल जाता है, because Rafa can take you on that journey with him where you're like, आसन को याद होगा यार, आई एम नॉट अ वेरी एंशियस पर्सन उस तरह, बट आसन को याद होगा राफा के बड़े मैच से पहले आसन वुड बी कॉलिंग मी एंड आई वुड बी इन द वॉशरूम, आसिफ क्या तेरी मेमोरीज यार, हमारे फैंडम, आता हूं मैं फिर बाद में, बट हमारे फैंडम के ऊपर जो है नडाल के साथ जो ऑब्सेशन रहा है उसके ऊपर बता जरा। Man. Yeah, your obsession with Nadal is unmatched. But yeah, man, the pre-match, post-match discussions, like the anticipation
like we unfortunately didn't get to watch as many matches together as we liked, but when Yeah. we did, it was just that euphoria after every like winner he hits out of nowhere, and man, so 100%. many good memories. Listen, so many बट good वही memories. अब आसन और मेरा भी जो पर्सनल जर्नी है उसके अंदर अच्छी बात ये हुई कि एज फेट वुड हैव इट, राफा का आखिरी मैच जो था करियर का प्रोफेशनल, वो मैंने और आसन ने इकट्ठे देखा था, बिकॉज ही वाज हियर। आई थिंक हमारे लिए क्लोजर तो कभी नहीं मिलेगा। आई रिमेंबर आसन's dad messaging me अभी विंबलडन फाइनल में कि हु आर यू रूटिंग फॉर, अल्कराज और सिनर। आई वाज लाइक जीत टेनिस की होनी चाहिए, राफा के बाद आई डोंट केयर। ठीक है, so he's like but life has to move on. I was like there are some people you don't move on from. So for me Rafa will always be that. I'll never go on, नहीं I पूछ wasn't लो। sure अगर आफा की बात कर रहे थे, नहीं खैर, moving on. No, no, there are other people you don't move on from either, but but even like Rafa is someone you don't move on from. For me, tennis, it's fine as a neutral now. Like आप बड़ा मैच देख लो, it's good to watch good tennis without having any sort of stress. ठीक है ना, because एक बार मुझे लाइव मैच देखना पड़ता था नडाल का, और उसके बाद फिर मुझे जो है ना हाईलाइट्स देखनी पड़ती थी, ठीक है, जस्ट टू सी के हुआ क्या है। वही हाल था। मुझे बंदे से नहीं पूछा था, कहता मैं आज 500 हार गया हूँ बेट पे। उसने कहा कैसे, कहता 200 लगाया था लाइव मैच पे। उसने कहा बाकी 300 कैसे हारे हो, कहता हाईलाइट्स पे भी 300 लगा के हारा हूँ। तो मेरा वो हाल होता था। तो मेरा वो हाल होता था। सो लास्टली, so this last chapter is about Rafa's legacy at Roland Garros. Uh, आसिन यार, the floor is yours, फिर मैं करता हूँ। I mean, it's incredible. So I just remember that moment when he walked on to that Roland Garros court for the last time, and he got introed by the announcer, and they हाँ go through his titles, and he's like 2005, 2006, हाँ and he just goes on and lists off 14 titles. I think that's the point where it hits you how absurd his legacy on court is. Like, to win 14 French Open titles. Like, I mean, it you can't even comprehend like how unreal that record is. Imagine winning, no one's ever won 14 at a single tournament, right? That's nope. the highest at any tournament. And After to think that of it, it's it's 12 for not, him. yeah. After that it's Yeah, 12 yeah, for him, maybe on exactly. Monte Carlo. In Barcelona, right? Yeah, yeah. Like, I Barcelona and mean, then it's Monte Carlo में 11. It's just absurd. like the mind can't comprehend how unreal to win 112 matches at the French Open, and to have lost four. और Like, these numbers, they're absurd. There's no other word for it. Khair, I'll let you यार take the आसिन, floor वो on पता है this क्या one. है, मेरी जान बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो जो इंट्रो है ना, वो जो मार्क Mm. माउरी नाम है उसका, वो जो Yeah, इंट्रो है, उस इंट्रो में ही मोहब्बत है भाई। yeah. बिकॉज वो नडाल भी कहता है when they're introducing me I get goosebumps. So like Mm. उसको भी ये चीज हिट करती है कि Yeah. what have I freaking achieved. It's Mm. मेरा नहीं ख्याल है कि like sport में records are meant to be broken, but I think this record will stand the test of time. ठीक है, Yeah, agreed. अगर ये किसी और टूर्नामेंट में होता ना, तो मैं कहता यार ठीक है, हार्ड कोर्ट पे कोई इतना डोमिनेट हो सकता है, ग्रास पे हो सकता है, a freaking surface that requires you to play every freaking point. ठीक है ना, इधर आपको सर्व नहीं बचा सकती, इधर आपको आउट एंड आउट अटैक नहीं बचा सकता। यू नीड टू There's हैव nowhere to hide on that court. कुछ नहीं है भाई। मिट्टी उड़ रही है, आपके गले में भी जा रही Yeah. है, आपके पैरों पे भी लगी हुई है, Mm. शूज सॉक्स के अंदर। इट इज लाइक, और अच्छी बात है कि नडाल जो है ना, वो लाल क्ले, दिस मैटाडोर, like Yeah, they just go together, yeah. to win 14। यार नॉर्मल कर दिया ना कि जी हाँ, अब 10 बार्सिलोना पे भी जीतूंगा, 10 मॉन्टी कार्लो पे भी जीतूंगा, 10 रोम में भी जीतूंगा। ही वॉन्ट 10 रोम के अंदर यार। उसके बाद ग्रैंड स्लैम में आऊंगा, बाकी जगह कम जीतूंगा, लाइक 10 11 12 रिस्पेक्टिवली, एंड इधर 14 जीतूंगा मैं भाई। दिस इज वेयर यार, वो जो डायमेंशन है ना कोर्ट की, वो ये कहता है कि वो जो डेप्थ भी है ना बिहाइंड द बेस लाइन, दैट हेल्प्स मी टू। और द वे ही वुड गो बैक एंड फोर्थ, उसका फुटवर्क ऑन क्ले, लाइक फुटवर्क लाइक एनीवेयर, बट उसका फुटवर्क टू गो बैक बैक, लाइक टू कम फ्रॉम, लाइक बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट की होर्डिंग से Yeah, रिटर्न yeah, करके
to come to the Exactly. baseline before the other Yeah. person's hit his shot. और वो सर्व एंड वॉली भी करते थे, वो भी कुछ नहीं काम करती थी. Like there is nothing that worked against peak Rafa Nadal on that court. Mm. Yeah. Rafa Nadal at Roland Garros is the highest level of tennis ever seen. End of. आपने ग्रेटेस्ट एवर अगर टूर्नामेंट में, जैसे अगर कोई देखे पूछे ग्रेटेस्ट एवर टूर्नामेंट in terms of a player like being consistent throughout a tournament and being just excellent, it is Roland Garros 2008. That was domination. Yeah. ठीक है ना. You're beating जोकोविच भी उस वक्त ग्रैंड स्लैम जीत चुका था भाई. ठीक है. स्ट्रेट सेट्स में जोकोविच को सेमीफाइनल में वॉश्ड. ठीक है. वो तीसरा सेट 7-6 इसलिए गया बिकॉज राफा लॉस्ट हिज कंसंट्रेशन. 3 लव अप था ये तीसरे सेट में भी, 2 ब्रेक्स अप. फाइनल में 6-1 6-3 6 लव अगेंस्ट रॉजर फेडरर. मैन, वर्ल्ड नंबर 1 के खिलाफ. यार एक ऐसा ग्रैंड स्लैम जीतो, लेटा भी नहीं है, हाथ खड़े कर दिए कि मुझे पता है यार मैंने जीतना था, आई एम सॉरी. लाइक इट वाज जस्ट. और क्वार्टर फाइनल में असन एल्मैग्रो वाज अ वेरी वेरी गुड क्ले कोर्ट प्लेयर. मैन, 1-1 and won 3 breadsticks. And that's where Almagro said ना अपने कोच को फ्रस्ट्रेट होके उस मैच के अंदर कि he's gonna win 40 Roland Garroses, he's gonna win till he's 65. ठीक है ना. तो वो रॉडिक कहता ना, रॉडिक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है कि रॉडिक को उसके कोच ने कहा 2004 में जब वो डेविस कप में जीता, ठीक है, रॉडिक से. तो रॉडिक ने कहा कि ये फ्रेंच ओपन जीतेगा, तो उसके कोच ने कहा, डग स्प्रीन था मे बी, डग स्प्रीन ने कहा कि he's gonna win 7 Roland Garros titles. तो रॉडिक ने कहा यार दैट्स पुशिंग इट, कम ऑन. ठीक है ना. तब रॉडिक कहता आई वाज राइट, ही डिडंट विन 7, ही वन 14. ठीक है ना यार. इट इज जस्ट इनक्रेडिबल. वो उधर उसको पता नहीं कौन सा चल चढ़ता था, भूत आ जाता था उसके ऊपर, केड़ियां चुड़ेला उन्होंने जेड़ियां ने ना. मुझे तो, मैं अब कहना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू टर्न दिस इनटू अ पॉलिटिकल डिबेट, बट यू नो व्हाट आई मीन. पता नहीं क्या था यार. बस राफा वाज इनक्रेडिबल. यार तू इमेजिन कर 2008 में जीता ना जब यासन, तो दैट वाज हिज 4th कंसेक्यूटिव टाइटल एट रोलैंड गैरोस, और अभी तक हारा नहीं था उधर. ठीक है. Yeah. और यार वो बंदा गया है वापस ड्रेसिंग रूम में, तो वो एल्बर्ट कोस्टा नहीं, वो मार्क, वो जो कोरेजा जो है, कोरेजा गया उसको कंग्रेचुलेट करने. इज लाइक यार, like these 2 weeks were like different to any other title wins that you've had. So he's like, yeah, you know, this is the first time I played well. He's like, what do you mean? Like you won the last 3? He's like, no. This is the first time I played well. पिछली 3 बार I had to fight. You know, like I had to like fight, grind it out. ये पहली बार अच्छा खेला हूँ. यार ये लेवल है. It's upsetting. Yeah. ठीक है. और क्रेजा ने उसको उधर का, और राफा इज लाइक, आपको पता ही है कितना हम्बल है, सबको पता है ही इज हम्बल पाए. तो राफा को क्रेजा ने कहा, ये उसने अभी स्टोरी बताई है उसको टीवी पे, तो उसे क्रेजा को राफा को उसने क्रेजा ने बोला कि आई थिंक यू कैन विन 10 ऑफ दीज. राफा लाइक मे बी मोर. तो कहते ना कोल्ड, ये जेनजी वाले कहते हैं कोल्ड ऑरा, ऐ होता है ऑरा. ठीक है ना. Exactly. मे बी मोर. Think, man, people give their whole lives work towards just winning one of those, you know. And if they do that, that's it. You know, I've achieved Yes, success. और क्या चाहिए? And he's got 14, man. 14 titles. Like it's wow. यार absurd. और I am so happy because मैं और आसन इकट्ठे थे जब वो डेविस कप का भी हमने एंड वो ट्रिब्यूट देखा था. It was just, you know, like it was nothing. Underwhelming था. It wasn't fitting of the legend that he is. And I'm so happy that he got his tribute at Roland Garros. और दिल जीत लिया यार. For a Spaniard, ये वो पाकिस्तान इंडिया वाली राइवलरी है, बू होता था पहले 3-4 साल. ठीक है ना. और he won so much that they ended up loving him. Yeah. But I think at one point, because he won so much, people wanted to see something else, right? That was the only reason. Otherwise, like, how could you not love someone like Nadal? It's just 100%. what a guy. If you don't like Nadal, you're not doing well in life. Yeah, exactly. और द ट्रिब्यूट जो उन्होंने आंसू निकाले हैं नडाल के, जो उन्होंने आंसू मेरे निकाले हैं, मजा आ गया यार वो ट्रिब्यूट देख के. दैट प्लैक दैट्स गोना बी देयर फॉरएवर, एंड दैट वाज द मोमेंट दैट मूव्ड राफा, बिकॉज राफा वाज लाइक, आई थॉट इट्स गोना बी हियर लाइक जस्ट फॉर दिस ईयर, बट व्हेन ही सेड, उसको उन्होंने ये सरप्राइज दिया है, वो अनाउंसर ने जब अनाउंस किया कि दिस इज गोना बी हियर फॉरएवर, दैट्स वेयर यू नो इट वाज जस्ट, यार ये मैंने क्या कर दिया. ठीक है ना. वैसे तो फिलिप शैट्रियर को भी इनको उसका नाम कर देना चाहिए, राफेल नडाल
stadium because there's no other way to do it. Statue उसको बना के दिया उन्होंने 3-4 Yeah. years ago. And Yeah. like to have a statue while you're playing, ठीक है ना, 2022 में ट्रॉफी उठा के लेके गया स्टैचू के आगे, just goes to tell you कि यार इस बंदे ने उधर what he's done will never happen again. ये मैं कहने को Yeah. तैयार हूँ. It will never happen again. To win 14 Roland Garros titles will not be repeated. ये जितना मर्जी आप कर लो इसको 3 sets बना लो, 5 sets बना लो, 1 set playoff बना लो. Yeah. It won't happen again. It'll never happen. Yeah, again. it's one of the great stories of sport, let alone tennis. Like it's just one of 100%. those that transcends all sport. Yeah, the toughest task in tennis, the toughest task in sport, the toughest task in sport to take him down in a best of 5 और Roland Garros पे. और राफा का मैं यार सिर्फ I don't want to get into stats. Asan, should we get into stats or should we just let it be? If you want to give a snippet, I'll let you go for it. चलो, I'll give you a snippet. मैं because obviously everyone has their own version कि जी गोट कौन है और कौन गोट नहीं है. राफा का यार मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बेस्ट ऑफ 5 टेनिस में ना इससे ऊपर का कोई प्लेयर नहीं आया. इफ यू लुक एट द हेड टू हेड बिटवीन द टॉप 3, तो राफा अगेंस्ट द अदर 2, रॉजर फेडरर एंड नोवाक जोकोविच, ही इज एट 21-11. ठीक है. जोकोविच इज एट 18-17 एंड फेडरर इज एट अबाउट 8-17. ठीक है. सो मेरी नजर में यही हायरार्की रहेगी हमेशा. Even though I am a bit biased, मैं मानता हूँ, but because मेरी personal life में he's been, you know, a rock or biggest inspiration, my biggest hero, and he always will be. इंशाल्लाह किसी दिन जाएंगे इसकी academy for a week, or you know, just to see what he's built. That is his legacy in my eyes. राफा जैसे आदमी ने यही करना था, academy ही खोलनी थी where, you know, you can just try to impart a bit of, you know, his soul onto the next generation. It's a very difficult thing to do. Forehands आप सिखा सकते हो, soul जो है ना वो replicate नहीं होता. Absolutely. So yeah, lastly मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यार एक लड़का आया था मयोर्का से, एक छोटे से गांव से, एक स्मॉल विलेज मैनोकोर से आया था, टेनिस खेलने आया था और हमें जिंदगी जीना सिखा गया. On that note, Rafa, love you, my man. Thank you, Asan. And we'll get you on this platform again soon because Asan is, you know, he has a lot to say about football and he has a lot to say about cricket as well. But today was for Rafa and Asu. Forever in debt, Thanks for yeah, for having me on, bro. making out the time. तेरे बगैर ये tribute नहीं होना था. Because I was thinking what would be fitting, you know, I wanted someone to have this conversation with, or मेरा नहीं ख्याल I could have thought of a better guy to do it with. So thank you, my man. Yeah, it's been a Rafa, pleasure, brother. once again, love you and miss you forever. See you guys.